particular territory. So the next topic which we are going to study is about disability rates. So right up to now we discussed morbidity indicators. So morbidity indicators were characterized into two major terms: the incidence of a particular disease and then the prevalence rates. So the prevalence incidence can be assessed at different levels. Similarly, prevalence can also be assessed at different levels. So this was all about morbidity indicators. Now we are going to discuss the disability rates. Means what are the disability rates, how disability rates will impact a particular population. So we will discuss disability rates. Disability rates are of two categories. The one includes event type indicators and the second include person type indicators. First we will discuss event type indicators. Number of days of restricted activity, bed disability days, work loss days within a specified period of time. तो जो इवेंट टाइप इंडिकेटर्स हैं या इवेंट टाइप डिसेबिलिटी रेट्स हैं, उसका मुझसे मुराद ये कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो बीमार हो जाता है और कितने दिन वो बेड रेस्ट पे रहता है. तो दिस इज आल्सो अ इवेंट टाइप डिसेबिलिटी रेट. Event type disability rates are calculated by subtracting the total age of a particular person minus the bed rest days of a particular person. एक इंसान की पूरी कितनी उसकी एज है और उस एज में से कितने दिन बेड रेस्ट पे रहा है वो माइनस कर देंगे बेड रेस्ट पे जो दिन थे, तो आपके पास इवेंट टाइप डिसेबिलिटी रेट्स आ जाएंगे. मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है जिसको कोरोना हो गया है और वो 2 हफ्तों के लिए बेड रेस्ट पे था. तो 2 हफ्तों में अगर वो बेड रेस्ट पे था तो इट्स मीन अब क्या करना है हमने, उसकी लाइफ अगर एज 40 साल है, 40 साल में से आप 2 हफ्ते माइनस कर दें तो बाकी उसके जो 2 हफ्ते माइनस करेंगे तो वो एक्चुअली उसके पास इवेंट टाइप डिसेबिलिटी रेट्स आ जाएंगे. कि इसी तरह एक पूरी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल लेवल पे इवेंट टाइप डिसेबिलिटी रेट्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि इनकी कम्युनिटी लेवल पे या पॉपुलेशन लेवल पे इंपॉर्टेंस है. एक पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि कितने लोग थे जो बेड रेस्ट पे गए हैं कोरोना की वजह से या किसी भी एपिडेमिक की वजह से. तो आप सपोज एक 1000 लोगों की पॉपुलेशन में अगर 1000 लोगों की पॉपुलेशन में से 600 लोगों को अगर बेड रेस्ट रिक्वायर्ड था कुछ डेज के लिए, तो इसका मतलब है number of people who are facing from event type disability in a particular population. So at the population level, event type disability indicators have significant importance, but event type disability indicators don't have any more importance at the individual level. क्योंकि बेड रेस्ट पे कोई बहुत कम दिन ही रह सकता है, लेकिन अगर कोई लॉन्गर टाइम के लिए बेड रेस्ट पे तो देन वी कैन से दैट इवेंट टाइप डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स हैव देयर इंटीग्रल इंपॉर्टेंस. फर्दर, person type indicators: limitation of mobility, confined to bed, confined to house, special aid in getting around, limitation of activity, limitation to perform the basic activities of daily living, eating, washing and dressing. Those people who are suffering from mobility related disorders, कि वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, और confined to bed rest, वो खुद मूव नहीं कर सकते, they are unable to perform their daily life activities. Such kind of disabilities are termed as person type disabilities, and such indicators are known as person type disability indicators. एक population में कितने लोग हैं which cannot move or which cannot perform their daily life activities. So this is another kind of categorization of disability where we can assess the people who are facing from person type disability in a particular population, and then government devise or launches certain strategies to support them. कि उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड करना और इस तरह से उनको हीयरिंग एड या बाकी जितने भी एक्सेसिबल डिवाइसेस होते हैं वो प्रोवाइड करना, एक्सेसिबल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. गवर्नमेंट ट्राइज टू डू दैट बाय फाइंडिंग the number of people who are suffering from person type disabilities in a particular population. अच्छा जी, फर्दर है डिसेबिलिटी इंडिकेटर हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. This is also a disability indicator. How we follow it: life expectancy at birth, but includes an adjustment for time spent in poor health, number of years in full health that a newborn can expect to live based on current rates of ill health and mortality. अच्छा, हेल्थ से मुराद ये होती है कि एक इंडिविजुअल है जो कि नॉर्मल है. सपोज नॉर्मल अगर बर्थ उसकी होती है तो हम कहते हैं कि उसकी नॉर्मल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट कुड बी 70 ईयर एज. लेकिन वो क्या होता है कि पैदा होने के बाद
उसके कितने अरसे के लिए वो डिसेबल रहता है, सपोज वो कितने अरसा अपनी लाइफ को मैनेज करता है बाय यूजिंग सम एक्सेसिबल फैसिलिटीज और नेसेसरी फैसिलिटीज, सो दैट रिप्रेजेंट्स हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मिसाल के तौर पे जी, क्या एक इंडिविजुअल है जो कि नॉर्मल है, 10 साल तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 10 साल के बाद उसकी एक बोन लेग फ्रैक्चर हो जाती है सपोज। अब अगर 10 साल के बाद उसकी लेग फ्रैक्चर होती है 10 साल की एज के बाद, और वो 70 ईयर जिंदा रहता है, तो इट्स मीन दैट पर्सन इज लिविंग 60 ईयर ऑफ हिज एज विद हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, के उसने अपनी लाइफ को एडजस्ट किया फॉर 60 ईयर्स। सो दिस इज एन अदर वे टू कैलकुलेट हेल फॉर इंडिया इज 53 ईयर्स। तो हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कि एक डिसेबल इंडिविजुअल है इंडिया में, वो मैक्सिमम 53 साल तक अपनी डिसेबिलिटी को मैनेज करके जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। बट ओवर हियर दैट इज नॉट स्पेसिफाइड व्हाट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। In Pakistan, you can even calculate this one. Further, disability adjusted life years. There is a question from someone, so let me take that question first. I think sir slide show nahi ho rahi. Atika, if you are using your mobile phone, especially Apple mobile phone, then the slides are usually not showing. But if you are using Android mobile phones, then slides will be showing. So this is a issue at the back end. अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। इट इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेजर टू फाइंड द बर्डन ऑफ इलनेस इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। तो जब अगर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर आप फाइंड कर लेंगे, तो इसका फायदा ये कि आपको पता चल जाएगा कि इस पॉपुलेशन पे किसी डिजीज का कितना बर्डन है। सपोज there is a person who is suffering from neuropathy related disability, तो अगर आप पता कर लेंगे कि पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो कि न्यूरोपैथी के साथ अपनी लाइफ को एडजस्ट किया हुआ और वो जिंदा रह रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूरोपैथी डिजीज की प्रेवलेंस कितनी है। तो आप तो इट्स मीन इट्स indirect way to calculate or assess the burden of a disease in a particular population. Two things needed to be measured in disability adjusted life years. Life table of that country. अगर आप कंट्री लेवल पे डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि लाइफ टेबल उस कंट्री का फाइंड करना है। लाइफ टेबल से मुराद है व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ सब्जेक्ट्स इन दैट कंट्री। उस कंट्री में लोग ज़्यादातर कितनी मैक्सिमम एज है उनकी। पाकिस्तान में सपोज 68 ईयर है, तो अमेरिका में जाके वो 70 प्लस होगी। तो इस तरह से उस कंट्री की आपने फाइंड करनी है पहले जो लाइफ टेबल है। एंड आफ्टर दैट टू मेजर द लॉसेस फ्रॉम प्री मेच्योर डेथ्स। फिर आपने देखना है कि कौन प्री मेच्योर डेथ की क्या क्या वजह, कितने लोगों की डेथ हो गई है। लॉस ऑफ हेल्थी लाइफ ईयर्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। द डिसेबिलिटी मे बी परमानेंट, पोलियो और टेम्पररी, फिजिकल और मेंटल। तो लॉस ऑफ हेल्दी लाइफ ईयर, एक बंदे की, वही मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि एक बंदे की अगर 70 साल एज है और 10 साल तक वो नॉर्मल था और 60 ईयर उसने जो जिंदा रहा है वो डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट किए, तो आपने क्या करना है कि 70 में से 10 माइनस करेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग द हेल्थ डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो आपके पास 60 ईयर जो लाइफ आएगी वो उसने डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट किए। So disability adjusted life years is equal to year of life lost plus year lost due to disability. ये आप प्लस करेंगे तो तब भी आपके पास सेम ही रिजल्ट आएगा, that will be disability adjusted life years. Okay जी। नेक्स्ट है यूसेज ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या फायदा है, इनको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? वी आर कैलकुलेटिंग डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स टू असिस्ट इन सेलेक्टिंग हेल्थ सर्विस प्रायोरिटीज। अब आपको अगर पता चल जाता है कि एक पॉपुलेशन में इतने लोग हैं जो डिसेबिलिटीज के साथ रह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रायोरिटी बेसिस पे लॉन्च करें। गवर्नमेंट क्या करेगी, उन एरियाज में हेल्थ सर्विसेज इंश्योर करेगी। फिर हेल्थ सर्विसेज से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे अभी कोरोना की वैक्सीनेशन अगर पाकिस्तान में हो रही है, तो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो तो इजीली कोरोना की वैक्सीनेशन करवा लेंगे क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, दे आर मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। But if there is a disabled person who is unable to move from one place to another, so there will be chances that person will unable to get the corona vaccination. So government should launch some strategies at priority levels to assist or provide health care services
to the peoples who are living with disability adjusted life years. तो गवर्नमेंट पहले उनको कुछ वैक्सीनेशन लगाए. So this is the advantage for government to do. Okay, another way to identify the disadvantaged groups. फिर ये फाइंड करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जहाँ पे कोई भी वैक्सीनेशन या हेल्थ सर्विसेज के प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं हो रहे, कि कौन सी ऐसी डिसेबल्स की कम्युनिटी है. सो दिस इज अनदर एडवांटेज. मेजरिंग द रिजल्ट्स ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस. हेल्थ इंटरवेंशंस के गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए और डिसेबल्स के लिए कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए, तो वो भी फाइंड किए जा सकते हैं. प्रोवाइडिंग कंपेरेबल मेजर्स फॉर प्लानिंग एंड एवेलुएटिंग प्रोग्राम्स टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो डिफरेंट कंट्रीज का हेल्थ स्टेटस भी आप कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर एज अ स्टैंडर्ड, एज अ कंट्रोल. तो कंट्रोल के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, या जो डिसेबल्स लोग हैं उनको, ये लोगों का, क्योंकि जिस कंट्री में डिसेबल्स लोगों का लाइफ स्टेटस या हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, उनको तमाम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होगी, तो इसका मतलब है दैट कंट्री इज हैविंग अ सेटिस्फैक्टरी हेल्थ केयर सिस्टम. One disability adjusted life year is one lost year of healthy life. कि अगर आप एक साल तक बेड रेस्ट पे या मूव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आपने एक अपना हेल्दी लाइफ का साल जाया कर दिया है. ठीक है. फर्दर क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर. अब हम बात करेंगे कि क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या है और हाउ यू कैन एडजस्ट योर लाइफ और हाउ यू कैन स्पेंड योर टाइम एज अ क्वालिटी टाइम. आप अच्छा टाइम अपना कैसे गुजार सकते हैं. कॉमनली यूज टू मेजर द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस. अब ये है कि इसका फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी फंड्स लगाए जाते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज पे, सपोज एक गवर्नमेंट है वो 100 रुपीज़ लगा रही है एक पॉपुलेशन पे. अब 100 रुपीज़ लगाने से गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स ये सेट किए थे कि देयर पॉपुलेशन शुड बी हैविंग डिजीज फ्री. एक 100 रुपीज़ लगाने के बाद भी गवर्नमेंट ने देखा कि उस पॉपुलेशन में डिजीज एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है दैट पॉपुलेशन इज नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर. तो इट्स मीन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर एंड द कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस वाज नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड. ओके जी. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ दैट वुड बी एडेड बाय इंटरवेंशंस. मिसाल के तौर पे एक पर्सन है जो कि सफ़र कर रहा है, मिसाल के तौर पे फेवर से, सॉरी कोरोना से सफ़र कर रहे हैं. अगर वो कोरोना से सफ़र कर रहा है और उसको ऑक्सीजन अगर मिल जाती है एक दिन के अंदर अंदर, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, वो जिंदा रह सकते हैं आगे एक मंथ के लिए. लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी. इट्स मीन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ दैट वुड बी एडेड बाय इंटरवेंशन. वी हैव प्रोवाइडेड oxygen and then oxygen is increasing the lifespan of a particular individual. So that's the benefit. Okay. Okay. There is another term like each year in perfect health is assigned a value of 1 down to a value of 0 for death. So ये 1 और 0 हम use करते हैं. These are the terms to represent either person is living or a person is died. ठीक है. So ये terms use करते हैं हम लोग. Students, if you have any questions, you can let me know. I think it's enough for today, so we will study further in our next class. So thank you for joining and for having there. So let me know if there is any question. You have raised an option, so raise your hands, then I can address your question. सर कितने चांस ऑफ एरर होता है सर किसी भी पॉपुलेशन की जब हम मॉर्बिडिटी रेट फाइंड करते हैं तो? एरर के चांसेस डिपेंड करते हैं आपकी सिलेक्टेड पॉपुलेशन पे. मीन्स इफ यू हैव चोजन अ पॉपुलेशन मोर देन 100, आप 100 से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर ले रहे हैं अपनी और उसको आपने प्रॉपर वो नहीं किया ना, क्या कहते हैं उसको, स्टेम मेरे पास तो अगर आपने उस 100 पॉपुलेशन को प्रॉपर लिया है ना, उस पे उन पे प्रॉपर अगर रिसर्च की है फिर तो ठीक है. लेकिन आपने उनके प्रॉपर न्यू केसेस और ओल्ड केसेस प्रॉपर फाइंड नहीं किए, तो फिर चांसेस हैं एरर के. लेकिन अगर ज़्यादा पॉपुलेशन ले रहे हैं आप 100 से, लेकिन सपोज 1000 की पॉपुलेशन ले रहे हैं या 100,000 की, और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन नहीं लेंगे, तो फिर चांसेस हैं एरर के. ओके. ठीक है. किसी और का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क प्लीज.